Hello students, good morning. I am Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So today we will start a new chapter about management of natural resources. In a previous unit, we are talking about the natural resources. So now in this chapter, how to manage resource को हम कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. So before the start this lecture, we will see the what is the main topics which are discussed on tomorrow in our index session. So first we will discuss about the introduction, that how to manage the resources, like natural resources को हम कैसे manage करेंगे, तो why we need to manage these natural resources. So next, what is the natural resources and the main Ganga action plan which are given by our government of India, and there is a 3 R's to save the environment. So there is a different types of R's are available in our syllabus. So there is a 3 R's to save the environment, and at last question answer for you guys. So please attempt these and reference. So let's start. Here we can see there is in your screen there is a natural resources. So natural resources क्या है? First, natural resources are the resources available in nature. जो रिसोर्स हमको नेचर में से हमको मिल सकते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. सो बेसिकली जो नेचुरली हमको नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है, नेचुरल में से जो रिसोर्स हमको मिलेगा उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे? इन नेचुरल रिसोर्सेज. तो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास? इट इज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मटेरियल, मिनरल्स एक्सेट्रा. Natural resources are two main types. They are renewable and non-renewable natural resources. So basically in a previous unit we have already discussed on this topic, that renewable and non-renewable natural resources. So let's revise them. Yes, so natural resources के दो टाइप्स रहेंगे. सो फर्स्ट इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो वी कैन रिन्यूड. ओके, सो दोज रिसोर्सेज विच कैन बी replenished a short time period, like air, water, sunlight, forest, etc. So जो हम इन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम उसको रीप्लान कर सकते हैं, फिर से हम उसको बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. वो सारे जो रिसोर्सेज रहेंगे which are natural resources. And there is a total opposite way, that is a non-renewable natural resources. So here those resources which cannot be replenished in a short time period. short time period के अंदर वो फिर से रीप्लान नहीं हो सकते, रिन्यू नहीं हो सकते. ऐसे जो कुछ भी रिसोर्सेज रहेंगे उसको हम कौन से रिसोर्सेज के अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे? देयर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो लाइक मिनरल्स, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, मेटल्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे टेक मिलियन ईयर्स ऑफ टू बी फॉर्म. उसको बनने के लिए काफ़ी सारा टाइम लगता है. देयर इज टू मच टाइम टू मेड अप ऑफ this type of metals and minerals. So ऐसे जो कुछ भी sources रहेंगे जो उसको प्रोडक्ट बनने के लिए काफ़ी सारा टाइम, it takes too much time in millions of years. So it is non-renewable sources. Human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into environment. This waste cause pollution of natural resources like air, water and soil. So due to the human activities, जो हमारी activities रहेगी उस पर डिपेंड करेगा. जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा के अंदर डेवलप करेगा. सो हियर
एक थिंग आपको बता देता हूँ कि जब कभी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन भी उस पर अफेक्ट करेगा। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस रहेंगे, विच आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर प्रोड्यूस्ड पॉल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। In an industrial area we can use the non-renewable natural resources, so there is a waste product जो रहेगी उसमें से ये एयर, वाटर और सोइल पोल्यूशन रहेगा ड्यू टू द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यस, सो नाउ दिस इज अ गंगा एक्शन प्लान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गंगा एक्शन प्लान, it is totally based on clean water management। वाटर जो रहेगा उसको हमको मैनेज करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, बिकॉज ऑफ पीने के लिए, जनरल यूज करने के लिए हमको पानी चाहिए। और इन अवर इंडिया देयर इज अ बिगेस्ट रिवर इज गंगा, ठीक है। सो गंगा को क्लीन करने की बात हम कई सालों से सुन रहे हैं। So how to clean the biggest river of our India in a religious level or other side? Ganga is the most popular river in all over India. So the Ganga Action Plan or GAP, there is a short form of Ganga Action Plan. Okay. So in your examination, the question is that what is the full form of GAP? So you must be right. The Ganga Action Plan was a program launched by Rajiv Gandhi in 1986 in order to reduce the pollution load on the river। जो वाटर पॉल्यूशन रहता था, जो वेस्ट मटेरियल रहता था गंगा के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट कंपनी में से इंडस्ट्रियल जो वेस्ट रहेगा, देन जो कई सारे जो वेस्टेज रहेंगे जो पानी के अंदर जाता था, गंगा पानी के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए गंगा एक्शन प्लान ऑनरेबल मिस्टर राजीव गांधी इन 1986 के दौरान उसको लॉन्च किया गया था। ये उस समय की बात है जब राजीव गांधी विच आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, ठीक है। सो राजीव गांधी के समय काल दौरान ये बात और ये प्लान एक्शन में लाया गया था। सो जीएपी इज नोन एज अ गंगा एक्शन प्लान। इट इज अ मोस्ट IMP MCQ for this unit in your final examination. What is the Ganga Action Plan? What is the GAP full form? So there is a Ganga Action Plan. Yes. So the Ganga Action Plan or GAP was programmed, launched by Rajiv Gandhi. किसने लॉन्च किया था? तो मिस्टर राजीव गांधी। It is also most IMP question for your MCQ guys. In 1986, in order to reduce the pollution load on the river, जो pollution load जो काफ़ी बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्शन प्लान लागू किया गया था in 1986 by राजीव गांधी। Yes. Then women waste, domestic use like bathing, laundry and public defecation. So हम लोग नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी और कई सारी पब्लिकली हम लोग यूज़ करते थे, तो वो सारा का सारा पानी कहाँ पे जाता था? गंगा के अंदर जाता था। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट इनटू इट। अनट्रीटेड जो वेस्ट था, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, उसको हम पानी के अंदर डाल देते थे। तो ये जो वेस्टेज रहेगा उसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन हुआ है उसको मैनेज करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। दैट्स वाई वी और आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू क्लियर एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन लोड ऑन द रिवर विच नेम इज अ गंगा, एंड दिस plan is known as a Ganga Action Plan. So what is the main reason behind of this action plan? It is a human waste and industrial waste. So that's why due to these two reasons the pollution load on the river is very high. So that's why we need to clean this.
गंगा इज ऑल्सो रिलीजियस इवेंट, एज ए रिलीजियस धार्मिक गतिविधियों के साथ भी गंगा नदी बहुत ही फेमस है. दैट्स वाई इन अ रिलीजियस इवेंट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन पीपल bath in the Gangas to clean themselves from their sins. ऐसा माना जाता है कि गंगा के अंदर नहाने से, उसकी पानी के अंदर पानी को हमारे ऊपर छिड़कने से हमारा सारे पाप धुल जाते हैं. ऐसा रिलीजियस मान्यताओं के साथ गंगा वेरी फेमस है. देयर इज अ वाटर ऑफ गंगा इज मोस्ट धार्मिक और मोस्ट पवित्र पानी में से एक है. सो दैट्स वाई इन अ रिलीजियस इवेंट्स मोस्ट पीपल्स आर बाथ इन द गंगा नदी. ठीक है. सो ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स people bath in the Gangas, cleanse themselves from their sins. A Hindu belief is that dropping the ashes of cremated at Varanasi, गंगा नदी वाराणसी घाट, जो वाराणसी घाट है वो गंगा नदी के वजह से ही फेमस है. सो इन वाराणसी देर इज अ मोस्ट पीपल्स आर कम and they are bathing days and also in a religious event. कई सारे हम जो धार्मिक गतिविधियों के दौरान जो हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा पानी के अंदर हम डालते हैं ड्यू टू द रिलीजियस इवेंट्स. तो इन द दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन अ हिंदू कल्चर ऑल्सो देयर इज अ मोक्ष. हम अस्थि विसर्जन करते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स में से जिसकी डेथ हो गई हो तो उसका अस्थि विसर्जन भी उसके अंदर करते हैं. सो दैट इज सो मेनी एस्पेक्ट्स टू गंगा एक्शन प्लान बिकॉज टोटली वाटर पोल्यूशन बिहाइंड ऑफ दिस थ्री रीजन्स. देयर इज अ केमिकल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. रिलीजियस इवेंट्स की वजह से जो वेस्टेज जो पानी के अंदर हो रहा था उसकी वजह से गंगा नदी का पानी totally polluted हो गया था. So that's why our government is have to need the clean of this river and our government launched the Ganga Action Plan. ठीक है, which are launched by Rajiv Gandhi in 1986 in order to reduce the pollution load on the river. Okay, so in your examination there is this question is that what is the Ganga Action Plan and give a brief note on this. So you must be right on this. What is the causes of water pollution in a Ganga river and what is the actual Ganga action plan and why we needed the apply the Ganga action plan in our India. Yes. So now in your screen there is a 9 image are you watched on your screen. There is a natural resources. So there is a very beautiful images. First image, second image, third image. There is a total all 9 image are show the natural resources. But the main difference was that in figure number 7 or last there is a wastage, there is a pollution, water pollution, soil pollution and etc. So due to this the main effect on a nature, so that's why we manage the natural resources. ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ही हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है. दैट्स वाई वी यूज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उसके लिए ही ये यूनिट आपके लिए, ये जस्ट पढ़ने के लिए नहीं है. वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. ठीक है.
हमको इसमें से सीखना है कि हाउ टू वी मैनेज दी आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे आसपास हम कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हाउ टू वी मैनेज दी वेस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो। अगर हम वेस्टेज को हम मैनेज करेंगे तो उसके दौरान क्या होगा, हमारे पास ड्राई वेस्ट होगा, वेट वेस्ट में वेस्ट होगा, तो जो हमारे पास वेस्टेज मटेरियल आ रहा है उसको हम सपोज नेचुरल जो वेस्टेज है उसमें से हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और उसका हम गार्डन एरिया के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू दिस फॉर सेव टू आवर अर्थ एंड सेव टू आवर लाइफ। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेस। Yes. A second point is that the 3 R's to save the environment. There is a 3 R's. R's, capital R's, to save the environment are reduce, recycle and reuse. But in your textbook, there is a 5 R's are available. It is a very easiest, but these 3 R's are most important R's to save the environment and most popular R's. That's why I take these 3 R's only. But in your textbook there is a 5 R's: reduce, recycle, repurpose, reuse and one also. ठीक है, सो वो जो 5 R's है वो आपको देखना ही है। अदरवाइज उसके अंदर कोई डाउट्स आ रहा है तो आप मुझको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो बाय मेल आईडी और बाय माय कांटेक्ट नंबर। हियर वी कैन ओनली see these 3 R's: reduce, recycle and reuse. There is a first R is a reduce, second R is a recycle and third R is a reuse. So it is a most important and most IMP question for your final examination. So first हम लोग देखते हैं कि what is the reduce. It means using the less natural resources and avoiding wastage of natural resource. We can use the less natural resource and avoiding the waste of natural resources. जो natural resources का waste है उसको हम avoid करें और जो natural resources का हम हमारी ज़रूरियात के मुताबिक ही हम उसको use करें. We can't use more and more. So it is a reduce. ठीक है. Then second thing is a recycle. It is a most popular form, most popular name. It is a recycle which are known we easily. That हमने कई सारी जगह पर ये सुना है कि recycle, 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 recycle. That means जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें से हम कुछ दूसरा फॉर्म यही मटेरियल का हम वापस बना सकते हैं. इट इज ऑल्सो known as a recycle. Means that the materials like a paper, plastic, glass, metals, etc. It is used to making things can be again be used making a new things. Okay. So जो हमारे पास जो मटेरियल है, सपोज मेरे पास कोई एक पेन है, ठीक है, अगर इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मैंने इसका यूज कर लिया, बाद में क्या करूंगा, इसका मैं रिसाइकल करूंगा और ये जो प्लास्टिक हमारे पास है उसमें से कुछ मैं दूसरी प्रोडक्ट बना सकता हूं. सेम इट इज इन अ पेपर ऑल्सो, इन अ ग्लास ऑल्सो, इन अ मेटल्स ऑल्सो. ठीक है, सपोज कोई मेटल की हमारे पास कोई एक रोड है, जी रोड को मैंने रिसाइकल करना है तो ये हो सकता है. सो हाउ टू वी रिसाइकल दीज थिंग्स, दैट सिंथेसाइजिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ न्यू पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स, उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज मटेरियल इन अगेन इन अ न्यू फॉर्म. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं एक बात ले लेता हूं कि कोई आयरन की हमारे पास कोई एक थिंग है, सपोज मैंने कोई एक मेटल के मेरे पास एक बॉक्स है, आई हैव अ वन मेटल बॉक्स, देन आई वॉन्ट टू रिसाइकल दिस. ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, जो मेटल है उसको सिंथेसाइज करेंगे, दैट मीन्स उसको हम गर्म करेंगे,
गरम करने के बाद उसको मोल्ड में डालकर जैसा हमको शेप चाहिए, जैसी प्रोडक्ट चाहिए, उसी प्रोडक्ट हम उसमें से बना सकते हैं। सेम इट इज प्लास्टिक के अंदर भी कर सकते हैं और सेम इट इज इन अ पेपर। जो हमारे पास न्यूज़पेपर आते, टोटली इट इज अ रिसाइकल पेपर। मोस्टली न्यूज़पेपर्स आर मेड अप ऑफ रिसाइकल पेपर। देन सेकेंड थिंग, थर्ड वन इज अ रीयूज। वापस यूज करना है, मीन्स द थिंग्स अगेन एंड अगेन, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स इन विच वी बाय जैम्स, पिकल्स एक्सेट्रा। जैम्स की बॉटल्स है, पिकल्स की बॉटल्स है, पानी की बोतल है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। पानी की बोतल में से हम क्या कर सकते हैं, वापस उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। पिकल की बोतल्स के अंदर वापस कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। So that is the purpose is same, but we can used again and again. It is also known as a reuse. So means using these things again and again, like plastic bottles in which we buy jams, pickles, etc., can be again used for storing things in the kitchen. Kitchen के अंदर हम काफी सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस। नाउ इट इज टाइम टू शो देयर इज अ थ्री इमेज इन योर स्क्रीन: reduce, reuse and recycle. So there is a main 3 R's: reduce, recycle and reuse. Okay, this is a total cycle, and for these 3 R's we can save our environment easily and highly. And second thing, वापस आपको बता देता हूँ, in your textbook there is a 5 R's and in some textbook there is a 3 R's. So all R's are very easy to understood. If there is any problem regarding to these R's, so please ask me, I will solve your doubts. Then recycle papers articles. सेकेंड और थर्ड इमेज आप देख सकते हो, उसके अंदर पेपर में से कुछ प्रोडक्ट्स बनाई गई है। पेपर में से जो अंडे रखने का जो ट्रे होता है वो भी पेपर में से बनता है। पेपर और प्लास्टिक बोतल में से फ्रेम बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं। सो बाय यूज ऑफ दिस 3 R's वी कैन मैनेज आवर रिसोर्सेस एंड ऑल्सो सेव द एनवायरमेंट। हम प्लास्टिक को डायरेक्टली हम थ्रो कर देंगे इन आवर गार्बेज सेशन, देर इज अ नॉट पर्टिकुलर वे, देर इज अ इंक्रीज द पॉल्यूशन। ओके, सो हम उसको जला भी नहीं सकते, प्लास्टिक को हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते और उसको हम फेंक भी नहीं सकते। सो दैट्स वाई वी मस्ट बी यूज द रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। ठीक है, so now it is a question answer for you guys. You compulsory to attend this. First, what is the natural resources? Natural resource क्या होते हैं and how many types of natural resources? There is mainly 2 types: renewable and non-renewable. So ये हमको मालूम है, सभी ये first 3 question which we are already discussed in previous unit to natural resources. So in third, make a difference between renewable and non-renewable resources. आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सो कई सारे स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएशन करने के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड होती है, जो मेथड आप फॉलो नहीं करते हो। सो प्लीज फॉलो दिस मेथड, यू कैन डिफ्रेंशिएट। सो आप 2 पार्ट बना दो, फर्स्ट पार्ट रिन्यूएबल, सेकेंड पार्ट नॉन रिन्यूएबल। And what is the main between difference these 2 points which you are right. ठीक है, पहले आप रिन्यूएबल लिख दे तो बाद में नॉन रिन्यूएबल लिखो, ये प्रॉपर वे नहीं है। एग्जामिनेशन के अंदर यू मस्ट टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। यू कैन मेक पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड उसके जो रिगार्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे वो आपको लिखना है टू द डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन। Then at 4th question, give a brief note on गंगा एक्शन प्लान। इसके अंदर आपको गंगा एक्शन प्लान के बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखनी है। व्हाट इज द GAP, दिस इज नोन एज अ गंगा एक्शन प्लान।
It is a totally based on Ganga river, and it is launched by Rajiv Gandhi in 1986 by government of our India. So at last define the reduce, recycle and reuse. ये तीनों के तीनों आपको लिखना है. रिड्यूस क्या है, रिसाइकल क्या है और रीयूज क्या है. और इसके साथ अगर आपको उसके एग्जाम्पल्स मालूम है तो आप लिख सकते हो. इट इज मोस्ट बेनिफिट टू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. एंड जिसके पास 5 R's है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रीपर्पस, तो वो सारे के सारे जो आपके पास है तो आप उसके साथ ये 3 के साथ बाकी के 2 R की बात भी इसके अंदर लिख सकते हो. सो आज के ये सेशन के अंदर हम यहाँ तक ही चलेंगे. फॉर रेफरेंस पर्पस आई यूज्ड योर गुजरात बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक. देयर इज a unit number 16. देन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की विकीपीडिया भी मैंने यूज की है. गाइस, यू मस्ट बी used Wikipedia also for your improving knowledge regarding to our topics. So basically Wikipedia क्या आती है कि उसके बारे में टोटली नॉलेज गूगल की साइट पर अवेलेबल हो सकती है. So you want to show this, so please search management of natural resources Wikipedia or enter. So you get the all information about the particular topics of this. So thank you for watching. To be continue on next lecture. My mail ID is given below, vijaytrivedi1997@gmail.com. Is any doubts regarding to these topics, please contact me. Now stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.